قابل ہو جائیں، کیونکہ سیکھنے کے عمل کی تین جو ہوتی ہیں اسٹیجز ہوتی ہیں. پہلی اسٹیج یہ ہوتی ہے سیکھنے کے عمل کی کہ ہم اس کو خود پڑھتے ہیں. دوسری اسٹیج یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں. اور تیسری اسٹیج یہ ہوتی ہے سیکھنے کے عمل کی کہ ہم اس کو آگے بیان کر سکیں. تو یہ تین اسٹیجز ہوتی ہیں. ابھی ہم میرے خیال میں پہلی اسٹیج پہ ہیں، تو ہم لوگ سارے سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اس کو. تو اس لیے کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو ہر روز ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں دہرائے گا، کیونکہ سسٹم تو ایک ہی ہے، ہم نے اس کو ہی بار بار دہرانا ہے. قرآن پاک میں بھی بار بار ایک چیز کو دہرایا گیا تاکہ بات پکی رہے، یاد دہانی رہے، کیونکہ انسان کی میموری شارٹ ہوتی ہے، وہ بھول جاتا ہے. تو اس لیے اس وعلیکم کو روز السلام دہرائیں جی گے تو سر، پھر ہمیں کیا حال یاد ہے؟ رہے گی. تو کل ہم نے ٹرون ماسٹر کے بارے میں بالکل ابتدائی اچھا جی، باتیں کہ یہ ہے کیا اور وہ سمجھی ہیں. تو آج ذرا چلو میں دیکھنا جو وا سسٹم ہے ہم اس کو میٹنگ کلیئر کر برل لیتے ہن ہیں تقریباً کو 20 اور ممبر نے یہ نال. کلیئر کر لیتے ہیں کہ یہ ہاں جی، مطلب کن مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے. تو اب ان تے مقاصد جو میں انشاءاللہ سمجھ آ ہنے جائے دیکھنا کہ ایک یہ اتنے کہ ٹرون 15-20 منٹ کریڈٹ کی لگنے نے. قیمت بڑھنی چاہیے. ہاں پھر ہاں بہت جی، سارے میں ایک دیکھنا. سسٹم بنایا ٹھیک ہو گیا، مارکیٹنگ کا ٹھیک ہے. سسٹم تاکہ بہت سارے لوگ اس کی خرید و فروخت میں آئے. طلب و رسد کی جو ہے طاقتیں وہ انوالو ہوں اور ڈرون کی قیمت بڑھے. جی میم، میرے خیال میں سگنل چلے گئے آپ کے پاس. سر ایسے ہی ہوگا کچھ. جی کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں آپ کی میم آواز کٹ گئی تھی، میرے خیال میں کوئی ہیلو، سگنل پرابلم آ گئی تھی آپ کی. آواز آ رہی ہے؟ جی جی ابھی آ رہی ہے میم، ابھی پراپر آ رہی ہے. جی جی اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی میم اب آ رہی ہے، آپ ٹھیک جاری. ہے. تو جی ڈرون کے مقاصد تو ہمیں سمجھ آ گئے. جی جی ڈرون کے مقاصد تو ہمیں سمجھ آ گئے تھے کل کے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سسٹم میں کیا کیا چیزیں ہیں. تو اس میں یہ کہ اس میں دو پلانز ہیں. ایک جی میم آواز میری آ رہی ہے آپ تک؟ تھوڑی اپنی لوکیشن میم چینج کر لیں، اگر میری آواز سن سکتی ہیں آپ تو تھوڑی لوکیشن چینج کر لیں آپ. سگنل کی نا پرابلم آ رہی ہے آپ کی طرف. اچھا ٹھیک ہے، میں لوکیشن چینج کر لیتی ہوں. جی اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی میم اب بالکل کلیئر ہے. اب آواز آ رہی ہے؟ جی آواز بالکل کلیئر ہے میم. جی جی اچھا. تو بس یہی ہے کہ ہم نے بیسیکلی جو ورکنگ پلان ہے اس میں کام کیا ہے. کام اس میں یہی ایک ہے کہ ہم نے نا ڈرون کو بیچنا ہے آگے. اور بیچنا اسی صورت میں ہے کہ رجسٹریشن کرانی ہے اکاؤنٹس کی. ہی ڈرون خریدے اور بیچے جاتے ہیں. تو مین میم آپ کی آواز نہیں آ رہی ان میں ابھی پھر نہیں آ رہی. ہمارے پاس نا آج نیٹ کا شاید کوئی پرابلم ہوا ہو. جی اب ٹھیک ہو گئے، اب آ رہی ہے. ہمارے پاس نا نیٹ کا پرابلم ہوا. جی ٹھیک
अब आ रही है आवाज? जी आप ठीक है, क्लियर है। जी। और वर्किंग प्लान उन लोगों के लिए जिनके पास 7 तारीख है और जिनके पास मेहनत है, लेबर है, वो कर सकते हैं। आ रही है अब आवाज? जी जी मैम बिल्कुल आ रही है। अब आ रही है अभी? जी जी मैम आ रही है आवाज आपकी, क्लियर है। अच्छा ठीक हो गया। और नॉन वर्किंग प्लान जो है वो उन लोगों के लिए जिनका सरमाया ज्यादा है। जी मैम, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी दोस्तों, माज़रत खा हूँ कि मैम के पास आज मेरे ख्याल में नेट की प्रॉब्लम है, तो मैम उतनी देर में अपने अकाउंट को मैच्योर करना है। दूसरी सूरत में जिसमें हमारे पास सरमाया जी। अब आवाज आ रही है आपको सबको? जी जी मैम अब आवाज़ आ रही है। आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, आपका माइक मेरे ख्याल में म्यूट हो गया। जी अब माइक, अब ठीक आवाज आ रही है? जी जी मैम अब ठीक आ रही है, आप कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम, अब ठीक आवाज आ रही है? जी मैम जी बिल्कुल आवाज़ आप क्लियर है, आप अब कंटिन्यू आ करें। रही है आवाज? जी जी मैम आवाज़ क्लियर है, आप कंटिन्यू करें। कि नॉन वर्किंग प्लान है, वर्किंग प्लान है। जो नॉन वर्किंग प्लान है उसमें सरमायाकारी ज्यादा होती है और वर्किंग प्लान। अब आवाज आ रही है आपको? मुझे आवाज की टेंशन हो रही है, मुझे लगता है हमारा नेट खराब हुआ है। जी जी मैम अभी आ रही है, क्लियर है आवाज़ आपकी, आप कंटिन्यू करें। ठीक है, बस ये कि मैं बाद में फिर वही बात दोहरा दूंगी कि 2 प्लान है हमारे इस प्रोग्राम को नेशनल की खरीदो फरोख्त, या इसके जो प्लान बनाया गया हुआ है जो डिसेंट्रलाइज है, जो हमारा ब्लॉकचेन पे है। अब हमें थोड़ी सी ये टर्मिनोलॉजीज भी समझनी है। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन एक्चुअली कंप्यूटर का एक नया निज़ाम बनाया गया है जिसमें ना हम जो मालूमात होती है, जो सॉफ्टवेयर होता है, उसको दुनिया के बहुत सारे कंप्यूटर्स में शिफ्ट कर देते हैं। तो उसका फायदा ये होता है कि वो किसी एक कंप्यूटर में नहीं होता कि उसको हैक किया जाए। जब हमने खुद ही उसको आम कर दिया उसको, तो फिर हैक करने का डर नहीं होता। दूसरा ये होता है कि वो मतलब कंप्यूटर एक डिस्ट्रॉय हो गया तो ये नहीं है कि बस उसी में ही था तो जो है ना बस वो खत्म हो गया। जब वो बहुत अपने मोबाइल पे, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। यानी एक सॉफ्टवेयर को बहुत सारे कंप्यूटर्स में शिफ्ट कर दिया जाता है जिसमें वो सारे खौफ जो होते हैं कि ये खत्म हो जाएगा, इसको वायरस आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो ये एक महफूज सिस्टम है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो है ना हमारा प्रोग्राम भी चलता रहेगा। दूसरा ये डिसेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज का मतलब, सेंटर का मतलब होता है एक सेंटर के इर्द गिर्द हर चीज, और डिसेंट्रल मतलब यानी कि उसमें कोई सेंटर नहीं है, कोई मरकज नहीं है। हर बंदा अपना कमा रहा है और अपनी मेहनत से ही वो कर रहा है। हम किसी एक बंदे के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि हम सब अपने अपने लिए और फिर अपनी पूरी टीम के लिए और इस तरह मतलब काम कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि कोई बॉस नहीं है जो हमें कह सके कि भाई इतने से इतने बजे काम करो और इतने से इतने बजे छोड़ दो। और फिर ये कि बॉस के लिए
یا اس ایک کمپنی کی چیز بیچنے کے لیے ہم کام نہیں کرتے, ہم اپنے لیے کام کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہم نے $30 سے کسی کو رجسٹر کروایا, $28 ہمیں مل گئے, جو باقی $2 ہے وہ سروس چارجز میں کٹ گئے, تو یعنی کہ 100% ہمیں مل گیا نا. کوئی بھی کمپنی آپ کو کوئی بھی چیز فروخت کرنے کا 100% نہیں دے گی. اب خواتین آن لائن کپڑے اور گڈ فروخت کرتی ہیں, میرے ارد گرد بہت ساری خواتین ہیں, لیکن ان کو کتنا ملتا ہے؟ 200, 300. ایک سوٹ خرید, جو سوٹ 10,000 کا بھی ہو سکتا ہے, 5,000 کا بھی ہو سکتا ہے, مطلب 3-4 ہزار کا بھی ہو سکتا ہے, تو ان کو اس کے حساب سے زیادہ کسی ایک سوٹ میں ان کو بچت ہوتی ہے تو 500 کی بچت ہوتی ہے. تو اس کی نسبت ہم جو فروخت کرتے ہیں ہمیں $28 یعنی کہ تقریباً اگر ڈالر کی قیمت کم ہو تو 8,000 تک مطلب ہمیں مل جاتا ہے. 9,000 کی اگر رجسٹریشن ہوتی ہے تو 8,000 ہمیں مل جاتا ہے. 10,000 کی اگر رجسٹریشن ہوتی ہے تو 9,000 ہمیں مل جاتا ہے. تو اتنا زیادہ منافع کوئی بھی نہیں دیتا. تو اس لیے ہے کہ ہم سب اپنے لیے کر رہے ہیں. ہم کسی کمپنی کے لیے یا کسی باس کو کے لیے نہیں سرمایہ اکٹھا کر رہے, بلکہ اپنے لیے کر رہے ہیں. تو یہ سسٹم کا فائدہ ہے. اور پھر اسمارٹ چین ہے. اسمارٹ چین کا یہ فائدہ ہے کہ فوراً ٹرانزیکشن ہمیں بغیر کسی اکاؤنٹ کا سہارا لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے. اب جیسے ہم بینکوں سے پیسے بھجواتے ہیں تو ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ بینک ہماری کرنسی میں اس کو کنورٹ کر کے بھیجتے ہیں, یا پھر اس میں کچھ سرمایہ وہ سروس چارجز کا بھی لے لیتے ہیں. تو اسی طرح مسئلہ ہوتا ہے. اب یہ اسمارٹ چین کے ذریعے میں یہاں سے بیٹھے اپنے ڈرون جو ہے نا امریکہ بھیج سکتی ہوں, امریکہ میں بیٹھے ہوئے یہاں آ سکتے ہیں, سعودی عرب بھیج سکتی ہوں, وہ اپنی کرنسی میں اس کو لے سکتے ہیں. مطلب آگے اپنے ایکسچینجر کو فروخت کر کے اسمارٹ کانٹریکٹ کا یہ فائدہ ہے کہ سیکنڈوں میں رقم ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے. اگر یہ صحیح معنی میں لاگو ہو جائے نا یہ سسٹم, تو پورا بینکنگ سسٹم, ٹیکس سسٹم سب کچھ اڑ جائے گا. یہی ایک وجہ ہے جس اسمارٹ چین کی وجہ سے جو گورنمنٹ ڈفرینٹ گورنمنٹس ہیں وہ اپنی کرنسی تو لانچ کر رہی ہیں. پاکستان کا بھی سنا ہے کہ انہوں نے اپنی کرنسی لانچ کرنی ہے. عرب ممالک نے بھی اپنی کرنسی لانچ کر دی ہے اسلامک کوائن کی, لیکن وہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر رہے کیونکہ ان کا جو سسٹم ہے بینکنگ سسٹم بھی مطلب اس سے ڈسٹرب کیا ڈسٹروائے ہو جائے گا مکمل طور پر. جیسے کیمرے تھے پہلے, ان کی جگہ موبائل نے لے لی, گھڑی کی انڈسٹری ختم ہو گئی. تو ترقی کے ساتھ کچھ انڈسٹریز ختم ہو رہی ہیں. تو اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ اسمارٹ چین پہ ہے, یعنی یہ بلاک چین پہ محفوظ سسٹم ہے, ڈی سینٹرلائز پہ آپ کو 100% یہ انکم دے گا, یعنی جو چیز آپ بیچیں گے اس کا 100% آپ کو ملے گا. تھرڈ ون یہ اسمارٹ چین پہ ہے, ہم 1 منٹ میں کرنسی ادھر سے ادھر بھیج سکتے ہیں. کوئی ہمیں دقت نہیں ہوتی, کوئی پریشانی نہیں ہوتی. صرف ہم نے ایڈریس سینڈ میں لکھنا ہوتا ہے جس کو ہم بھیج رہے ہیں, اور پھر آگے اماؤنٹ لکھنا ہوتا ہے, اور 2 منٹ میں ایک کلک سے رقم ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے. جتنی بڑی رقم ہو کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جب کرنسی آ جاتی ہے تو ہم چاہے ہمارے پاس $1 کی ہو, $2 کی ہو, یا ہزاروں ڈالر کی ہو, ہم آرام سے اس کی اس کو فائنانس پہ جا کے خود بھی فروخت کر سکتے ہیں, اور کسی ایکسچینجر کا سہارا لے کے اس کو بھی فروخت کر سکتے ہیں. اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے, نہ کم سے کم کی لمٹ ہے, نہ زیادہ سے زیادہ کی لمٹ ہے. تو وہ بھی ہمیں آرام سے, یہ بھی فائدہ ہے کہ وہ پیسے آ جاتے ہیں, ہم اپنی ضرورت کے مطابق لگا لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے اکاؤنٹس میں, یعنی جو ہم نے رجسٹریشن کرائی ہے, ہم اس میں پیسہ رکھیں تو کرنسی کی قیمت کے چڑھنے گھٹنے سے بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے. جیسے آج صبح میں نے دیکھا ہے تو میرے پاس تقریباً مطلب $28 کے پڑے ہوئے تھے. وہ صبح میں نے دیکھا تو وہ $31 بنے پڑے تھے. پھر میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا تو وہ 29 ہوئے پڑے تھے. تو اس طرح اتار چڑھاؤ سے ہم اگر سمجھدار ہوں تو جس وقت ہماری کرنسی کی قیمت بڑھ رہی ہو ہم اس وقت فروخت کریں, تو اس سے بھی ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم سیونگ کی صورت میں یہ کرنسی اپنے اکاؤنٹس میں رکھیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ مطلب یہ جو سسٹم ہے یہ ہر ایک کے لیے, ٹیم کے ہر ممبر کو فائدہ دے جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کو, بس یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ اگر اپ گریڈ کریں گے, زیادہ لوگ اپ گریڈ کریں گے تو ٹیم کو فائدہ ہوگا, ٹیم کی اپ گریڈیشن سے انہیں فائدہ ہوگا. تو اس سے مطلب ہم سب مل کے ایک دوسرے کا ساتھ کرتے ہوئے اپنے سینئر کی رائے کے مطابق ہمیں اپ گریڈیشن اپنی کرتے رہنا چاہیے, تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو, ہماری ٹیم کو بھی فائدہ ہو. مطلب اپنے اکاؤنٹ کو ہم نے اب $30 اگر اکاؤنٹ بنایا تو اس کو ضائع نہ کریں, اس کو ایز اٹ از پڑا نہ رہنے دیں, کیونکہ
आईडीज तो नीचे लग ही जाएंगे, बस ये है कि उसकी अपग्रेडेशन करे इस प्लान में। और इस प्लान में और क्या अहम बात और है, मतलब वो मैंने फीचर्स भी बता दिए, सारी चीजें बता दी। अब ये है कि जो $230 की इन्वेस्टमेंट है उसमें देखें कितनी ह्यूज अमाउंट। आप 5 साल में अब माशाल्लाह अगर हम सब अपने अकाउंट मैच्योर करें और सिस्टम के मुताबिक चलते रहें तो 5 साल में हम करोड़पति बन सकते हैं। कौन सी ऐसी नौकरी है, कौन सी ऐसी जॉब है जो दुनिया में इतना पैसा किसी भी इंसान को दे दे। मतलब 5 साल में पूरी जिंदगियां लग जाती हैं, पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी लोग करते रहते हैं और फिर जाके उनकी अगर वो 17, 18, 19 ग्रेड में होंगे तो उनको कोई 2 करोड़ तक की जो है ना एंड पे उनको ग्रेजुएटी मिलेगी। तो मतलब वो घर भी बन सकता है, कारें भी बन सकती है, हम अपना लाइफ स्टाइल बिल्कुल स्टेटस अपना बिल्कुल अप कर सकते हैं। और इसमें कोई तालीम का नहीं है कि इतनी तालीम हो, बस आप सिस्टम को समझे और काम शुरू कर दे। और काम बहुत इजी है, मतलब रजिस्ट्रेशन का जो तरीका है, मैंने जितने भी अब तक मतलब 3-4 में फोर्सेज को देखा है, एरोमेटिक को देखा है, इसको अब देखा है, तो मतलब इन सारे सिस्टम में जो सिंपल रजिस्ट्रेशन का तरीका है ना, सिंपली सादा सा और जल्दी हो जाने वाला, वो इसका है। मतलब मैं उन सब में कोई ना कोई मसला आ जाता है। और उन सब में एक जो सबसे बड़ा मसला है, अगर आपसे गलत आईडी हो जाता है ना तो वो किसी और के पास पहुंच जाते हैं रकम। यहाँ P2P है, मतलब अगर गलत हम करेंगे तो सिस्टम हमें बताएगा आप गलती कर रहे हैं, ये नहीं होगा। ये नहीं होता कि आपकी रजिस्ट्रेशन किसी, अब तक मैंने 34 रजिस्ट्रेशन कराई हैं, उनमें एक भी नहीं हुआ। फोर्सेज में पता नहीं मेरे से क्लिक ऐसा हुआ, तो जो है ना आईडी 1 नंबर के साथ लग गई, लेकिन उनसे एक रुपया 1 टका भी नहीं आया मुझे। के मतलब मैं कहूँ मैंने उनके लेवल भी अपग्रेड कर नहीं आया। इसी तरह एरोबैटिक में जब मैं काम किया तो उसमें भी यही होता है, यानी वो कंपनी के नाम पे उन्होंने अपना बनाया हुआ अकाउंट और उसमें मतलब उनको फायदा हो जाता है, हमारा मेंबर भी चला जाता है, हमारे पैसे भी जाया हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें P2P है, यानी 2 लोगों के दरमियान हो रही होती है, आपस में ट्रांजैक्शन होती है। अगर गलती हो जाए तो सिस्टम बता देता है कि आपकी गलती हो गई है, इस तरह नहीं होता। तो इसलिए ये हर तरह से एक महफूज सिस्टम है, जहाँ तक मैंने समझा, जहाँ तक मैंने पाया है। बाकी परफेक्ट अल्लाह की जात होती है, लेकिन परफेक्ट के करीब तरीन मतलब मैंने इसको पाया है। तो आप आराम से इसको समझ के और इसको सोच के आप और लोगों को भी फायदा दे सकते हैं, उन तक पूरा इल्म पहुंचाएं कि इसमें 2 प्लान है, एक वर्किंग प्लान है, एक नॉन वर्किंग प्लान है। वर्किंग प्लान उन लोगों के लिए जो मेहनत करते हैं, नॉन वर्किंग प्लान उन लोगों के लिए जो मतलब मेहनत नहीं कर सकते लेकिन उनके पास सरमाया है। फिर सरमायाकारी भी 2 तरह से हम कर सकते हैं, हम किस्तों में कर सकते हैं। किस्तों में ये कि जैसे जैसे हम बचत होती जाए हम अपना अपग्रेड करते जाएं। और ये भी हो सकता है कि अगर हमारे पास ज्यादा सरमाया है तो हम जो है ना लम सम में 70,000 पाकिस्तानी रुपीज में और $230 से हम एकदम दम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे समझाने पे है कि लोगों के इल्म में ये बात आए। और कुछ लोग जस्ट वैसे ही फेक 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 कहते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उन लोगों के साथ ज्यादा उलझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब समझा दें उनको, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बहुत ज्यादा फेक फेक कहते हैं तो उनको बस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके माइंड उनका जहन, क्योंकि जहन जो होता है ना इंसान का छोटा होता है, उनकी मतलब छोटा अगर हम सोचें तो वो छोटा सोचता है, बड़ा सोचे तो बड़ा सोचता है। तो वो फिर मेरे ख्याल में इतना बड़ा सोच ही नहीं सकते, उनके दिमाग में वो सिस्टम समा ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं ऐसे लोगों को मतलब 1-2 दफा समझाने के बाद छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ बस छोड़ दो इनको, क्योंकि इनका दिमाग ना आगे, जाहिर है फायदा तो उनका होता है और हम तो समझा रहे होते हैं। हम में अगर होगा तो $28 का फायदा होगा, उन्हें होगा तो करोड़ों का फायदा होगा। और वो अपने अगर करोड़ों मिस करना चाहते हैं, वो अपॉर्चुनिटी को नहीं अवेल करना चाहते, तो कोई बंदा जबरदस्ती किसी का फायदा नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों के लिए तो वही है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भागे जा रहे थे, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आप वही है ना जो अंधों को आंखें देते हैं और बीमारों को सेहत याब करते हैं? उन्होंने कहा जी मैं वही हूँ, अल्लाह के हुक्म से मैं ऐसा करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो फिर आप भाग क्यों रहे हो? उन्होंने कहा पीछे बेवकूफ आ रहा है, तो मैं उससे भाग रहा हूँ। यानी कि बेवकूफ का कोई इलाज नहीं है, जो अपनी अपॉर्चुनिटीज को जाया करे तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि सब लोग ऐसे नहीं होते। पाकिस्तान की इतनी ज्यादा आबादी है, तो क्या उसमें आपको 100 लोग भी ऐसे नहीं मिल सकते जिनको आप प्लान समझाएं और उनका भी फायदा करें और अपना भी फायदा करें? तो मेरे ख्याल में हम सब में इतने
फिर मैं इंशाल्लाह 75 करूंगी और 75 के बाद 100 करूंगी। 100 करने के बाद फिर मैं अपनी सारी टीम के 100 करूंगी, तो इंशाल्लाह मेरी बहुत बड़ी टीम बन जाएगी। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे। जिंदगी होती है तो सब काम होते हैं, अपनी सेहत का सबसे ज्यादा ख्याल करें, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा था कि मैं अगर इंसान होता और कोई मेरा रब होता तो मैं उससे सेहत मांगता। तो ज्यादा टेंशन ना ले, मतलब बिजनेस में, कारोबार में सुकून से करें, ये आपको बहुत कुछ दे जाएगा। मतलब इस ट्रॉन एस्ट्रल में बहुत ज्यादा मतलब कामयाबी की और सक्सेस की, और बिजनेस ऐसा है कि प्रॉफिट की बहुत ज्यादा शरह है, बहुत ज्यादा मतलब परसेंट आप प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट का है, हम 1 लाख रुपया अगर गवर्नमेंट में रखते हैं तो वो सूद या प्रॉफिट की शक्ल में 14% मेरे ख्याल में आजकल दे रहे हैं, लेकिन हमारे ट्रॉन एस्ट्रल में 100% हमें मिलता है। तो ये मतलब इस वक्त किसी भी और बिजनेस में नहीं मिलता। तो इसीलिए आप सबसे पहले कॉन्फिडेंट हों कि आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। दूसरी कॉन्फिडेंट हों कि हम सब 100 की टीम बना सकते हैं। और तीसरा कॉन्फिडेंस ये हो कि आपका सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल फेक नहीं है, वो बिल्कुल, जब आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे तो आप दूसरे के अंदर कॉन्फिडेंस भी ला सकते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, आप सबको कामयाब करे और मुझे कामयाब करे। और हमें सब, जैसे इस ट्रॉन एस्ट्रल का है ना कि भाई आपको बेफिक्री हो जाती है पैसों के मामलात से, तो आपको बेफिक्री ही हो जाएगी। ये मुकम्मल आपको, जैसे इसका नारा है कि मतलब एक मखसूस कुछ वर्ड्स हैं मेरे जहन में अभी नहीं आ रहे, उसमें यही है कि आपको माशी लिहाज से बिल्कुल बेफिक्री हो जाती है। तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह 2 साल बाद या 1 साल बाद हम बहुत बेहतर फुटिंग पे बहुत अच्छे अंदाज में बात कर रहे होंगे, क्योंकि हम सब वो अचीव कर चुके होंगे जो हमने सोचा होगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इंशाल्लाह हम सब अचीव करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। और अब मैं चाहूंगी कि नौमान भाई मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें। जी मैम, बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे इल्म है कि आप बिज़ी रहते हैं, लेकिन फिर भी अपना कीमती टाइम निकाल के आप मीटिंग अटेंड करते हैं और मोटिवेट करते हैं टीम को। तो अब मैं दावत देता हूं सर हीरा साहब को, वो थोड़ी शेयरिंग करें ग्रुप में। जी सर हीरा साहब। सर हीरा, आवाज़ आ रही मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम सर, जी मुझे आवाज़ आ रही है। मैंने आपसे बोला था कि मैं ज़रा बाहर बैठा हुआ हूँ, जी तो ठीक इस हो गया। सिलसिले में फिर भी जी अगर इजी है तो सिर्फ थोड़ी वक्त शेयरिंग कर दें 1-2 मिनट की। अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर सर साबर अली कर लेते हैं। सर जी मेरे पास शोर बहुत ज़्यादा है, मैं 4-5 ठीक मिनट हो में गया घर सर, पहुँच ठीक जाता हूँ, फिर मैं ठीक हो चलता हूँ। गया। जी सर साबर अली, आप शेयरिंग करें और बताएं कि कैसे और आपने बताएं टीम कि बनाई। कैसे आपने टीम बनाई। जी जी सर, बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने कैसे टीम बनाई है। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक ये भी बात बताना चाहूँ कि आज मेरी जितनी भी टीम बनी हुई है उसका एक ही रीज़न है, जो कि एक मुझे बहुत अच्छी लीडर मिल गई थी, जो कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मुझे इतनी अच्छी लीडर मिल सकती है। वो हमारे बीच में बैठी है, मैम आलिया। इंशाल्लाह अब अगला टारगेट है हमारा $200 का, मैंने नहीं किया है, मैं करूँगा। इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको वर्किंग प्लान की के 3 लेवल तक मैं ले आया हूँ, जो कि $60 की तीसरी लेवल थी। पहले तो होती है $30 से एंट्री हो जाती है, फिर दूसरी $40 की होती है, फिर तीसरी $60 की हो जाती है। उसके बाद हम स्मार्ट मैट्रिक्स में चले गए थे। अब ये देख सकते हैं मेरा डायरेक्ट एसोसिएट्स
मेरे एग्जैक्ट जो है ना एसोसिएट्स डायरेक्ट ज्वाइनिंग मेरी 4 हैं, ज़्यादा भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 ज्वाइनिंग है मेरी, और 4 ज्वाइनिंग हैं, एक गलती से हो गई थी, वो मेरी टीम की मेंबर थी। तो ये रेफर इनकम मुझे देख सकते हैं, $142.50 मुझे आई थी। स्पॉन्सर इनकम $209 आई थी। प्लेसमेंट अपलाइन की तरफ से इनकम आई थी $66.50। मैट्रिक्स इनकम अभी तक हमें नहीं आई है, तो इंशाल्लाह ये टोटल आनेंगे मेरी $418। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि, और अभी मैंने कम को बिल्कुल स्टॉप कर दिया है, मैं ऑनलाइन वर्किंग नहीं करता, ऑफलाइन वर्किंग करता हूँ, तो उस वजह से मेरी ये कुछ भी नहीं है, $418 इतनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है। और जो है मैं आपको बताता हूँ कि मेरी टीम के जो मेंबर हैं ना माशाल्लाह मुझसे भी आगे चले गए हैं, मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे देख के। मैंने अपनी मेंबरों को, मैं आपको दिखाऊँ एक मिनट टीम, ये देखो हमारी टीम ओपन हो रही है। जी दोस्तों आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैंने 4 मेंबरों को ज्वाइन किया है, और उसमें से आपको बताता हूँ 4 मेंबर में से 2 एक्टिव हैं, एक हमारा सर इलियास भाई, और दूसरी हमारे बीच में जो अभी बैठी है मैम आलिया, और 2 मेंबर जो है बिल्कुल एक्टिव नहीं है। आओ मैं आपको ये टीम मेरी चेक करो सर जी, 61 टीम मेरी बन गई है, सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों को मैंने ज्वाइन करवाया है, और माशाल्लाह मेरी टीम चेक करें 61। और अभी तो मैं ज़रा बिजी रहता हूँ क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, सबको पता होगा शायद, तो उसी वजह से मैं ज़रा बिजी रहता हूँ, इस काम को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसलिए इंशाल्लाह अब मैं 30 दिन के लिए ज़रा बिजी हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह फिर से इस काम को लूँगा जैसे पहले लिया था। और एक मिनट ज़रा मैं इसको ओपन कर। जी दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी अचीवमेंट, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, तो मुझे बहुत खुशी होती है मुझे अपने लीडरों के साथ कि मुझसे ज़्यादा भी मेरे लीडर जो है ना बढ़ गए हैं, और टीम भी हमारी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गई है। टीम डायमंड जो है ना हमारी बिल्कुल रियल में ही डायमंड है। जी सर नोमान, और ज़्यादा मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, तो बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच सर। आगे सर हेरा अगर कुछ बोलना चाहे तो बोले। जी जी सर साबर अली, शुक्रिया आपका। अच्छा सर, सर हामिद साहब बैठे हैं मीटिंग में। सर हामिद सर नहीं सर, सर हामिद नहीं है। नहीं है, चलो बेहतर हो गया। अच्छा किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन हो ट्रॉन एस्ट्रल के बारे में, या कोई वायलेट में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या रजिस्ट्रेशन में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, किसी किस्म का भी कोई सवाल है तो सर आप कर सकते हैं। माइक सबके अनम्यूट कर दिए गए हैं। या कोई ऐसा दोस्त हो कि जिसने आज किसी मेंबर से बात की हो और वो उसकी बात ना मानता हो, तो आप कोशिश करें इस 10 बजे वाली मीटिंग में उसको लेके आया करें, इंशाल्लाह हम उसको गाइड करेंगे। जी सर किसी का कोई सवाल नहीं है? नहीं सर शायद नहीं है। तो ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। तो जी 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 मलक साहब क्या कह रहे हैं आप? मलक सुहेल साहब कुछ कह रहे थे। जी उसामा भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हीरा भाई से आगे मीटिंग से पहले दोस्त कलीग जो है वो ना ज्वाइनिंग के बारे में पूछ रहे थे, तो रिसेंटली जो हमारी कल मीटिंग में जो हमारी कन्वर्सेशन हुई थी जिसमें आपने बताया था, गाइडलाइन बताई थी कि 320 वाला डॉलर पैकेज जो हम बाय करते हैं तो उसे हम कितनी देर में रिकवर कर पाएंगे। तो उस सिलसिले में और अपनी अमाउंट के हवाले से कुछ लोग बात करना चाह रहे थे कि क्या हमारा प्लेटफॉर्म सिक्योर है, इसकी कोई गारंटी देता है, इस हवाले से। जी जी उसामा भाई, पहले तो एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ।
हम जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम हज़ारों तरह की गारंटियां मांगते हैं सर। देखें, बिज़नेस ज़्यादा अहम है या हमारी ज़िंदगी ज़्यादा अहम है? हमारी ज़िंदगी सर ज़्यादा अहम है, लेकिन ट्रैवल करते हुए कभी हमने किसी ड्राइवर से उसका लाइसेंस चेक किया किसी भी गाड़ी में सवार होने से पहले? इसी तरह ही। नहीं करते चेक। क्यों? हमें पता होता है कि जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है ये ड्राइवर है, ये इस काबिल है तो इसको यहाँ पे बिठाया गया है। तो सर अगर हम इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं और इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं तो सर ये सिस्टम इस काबिल है कि हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। सर साबर अली स्क्रीन अपनी स्टॉप कीजिएगा। जी सर। तो ये सर 100% सिक्योर है और मैंने तकरीबन हर लीडर को बताया हुआ है कि कैसे इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट निकालना है और कैसे इसको दिखाना है कि भाई ये ब्लॉकचेन पे है 100%। और सबसे बड़ी मज़े की बात सर इस सिस्टम की कि इसमें सर अपडेट नहीं है। वाहिद सिस्टम है जिसमें अपडेट नहीं है सर। बाकी हर सिस्टम में आपको साल में 1-2 बार अपडेट नज़र आएगी, सिस्टम अपडेट में जाएगा, लेकिन इस सिस्टम के अंदर अपडेट नहीं है। पुराने लीडर जितने भी हैं वो जानते हैं कि इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आई थी कि ज्वाइनिंग के टाइम पे बाज़ औक़ात नेट स्लो होने की वजह से हमारे जो पेमेंट थी वो होल्ड हो जाती थी और रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर सिस्टम के अंदर उन्होंने बहुत कोशिश की।